Hello everyone, welcome to the Study IES Lane, a doorway to Labasna. You're watching with Sonica and this is our introductory video जिसमें हम prelims की strategy को discuss करने वाले हैं and our plan is to make a series on the strategy for the prelims and mains UPSC Civil Services examination for the year 2023 and further. So let's begin. A little disclaimer before I start the video or before I start the presentation. Disclaimer ये है कि whatever I'm going to tell today is the culmination of the personal experiences which I have gained over the years. ठीक है, what are the failures, ठीक है, which I have experienced. उन failures से मैंने क्या सीखा, क्या हमारे इंस्टिक्ट्स ने बोला, and these slides are talking about not only my experience but also my friends' experiences who have been through this preparation over the years. तो हमने like my project partner and me have made this presentation कि what can be the probable mistakes which a person is doing. Yeah, the person can be a beginner, right? This would be very helpful for them if you just don't want to, enter into this circle of this UPSC preparation. And secondly, who are preparing for 2 years or so, and they just have to analyze that where they are standing and what are the mistakes. Some mistakes they must have find out, and some mistakes they must have found out, and some mistakes maybe this would change their perspective. So let's come to the main point. सबसे पहली बात ये है कि सबको पता है कि क्या पढ़ना होता है, राइट? बट और ऐसा नहीं है कि ये पता नहीं होता कि किस तरीके से पढ़ना होता है, ये भी पता होता है कि कैसे पढ़ना होता है, बट वो जो अक्ल है वो बहुत बाद में आती है कि कैसे पढ़ना है, राइट? तो मुझे पर्सनली नहीं पता था शायद इतना कि किस तरीके से, ठीक है, देयर इज अ वे, राइट? देयर इज अ वे कि किस चीजों को पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा स्ट्रेस देना है, उस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा स्ट्रेस देना है, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बारी बारी आपके रिपीट हो रहे हैं. What are the concepts which are important for prelims? What are the concepts which are important for mains? Right? कौन से ऐसे facts हैं जो prelims pointer है, कौन से ऐसे facts हैं जो आप mains के लिए use कर सकते हैं as your introductory part or as your conclusion part. तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है कि you must know that किस तरीके से इस preparation को आगे लेके जाना है. And yes, तो know yourself where you lag because it is different for different persons. ठीक है, क्या आप प्रीलिम्स में स्टक हो रहे हैं, क्या आप मेंस में स्टक हो रहे हैं, ठीक है? सो इफ इट इज प्रीलिम्स तो क्या वो GS1 है या वो GS2 है, ठीक है, लाइक या फिर बोथ, राइट? दोनों भी हो सकते हैं कि आप 10 to 15 मार्जिन या मोर मार्जिन से रह रहे हैं, या इसमें भी आप एक 6 to 10 और हाउएवर इट इज इस मार्जिन से आप रह रहे हैं. सो ऐसा नहीं है कि GS1 में या GS2 में एक में ही आप स्टक हो रहे हैं, तो इट कैन बी बोथ एज वेल, राइट? तो यू मस्ट नो दैट कि अगर आपने प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट्स दिए हैं, यू कैन टेक अ पेन एंड पेपर एंड जॉट डाउन द पॉइंट्स, राइट? अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए हैं, सो हाउ मेनी मार्क्स आर यू गेटिंग, राइट? कितने मार्क्स बन रहे हैं और कितना ऑफिशियल कट ऑफ है, राइट? तो मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ सो दैट आई विल गिव माई एग्जाम्पल अगेन एंड अगेन सो दैट यू लर्न फ्रॉम मी एंड यू डोंट डू दोज मिस्टेक्स विच आई डिड एंड यू डोंट वेस्ट टाइम इन दिस प्रिपरेशन, राइट, लाइक फॉर दीज मेनी ईयर्स. ठीक है, सो मुझे पहले इनिशियली आई वॉज इन द रेंज ऑफ 65 to 75 मार्क्स, राइट, 2 years ago, right? So in 2022 I managed somehow to get around 92 to 94 marks, ठीक है? And the probable cutoff as per the various institutes is around 88 to 92 maybe, or maybe 93 or 94, we don't know, but yes, this is the probable cutoff. So we have to wait until the UPSC releases the official keys, ठीक है? तो पॉइंट ये है मार्क्स कितने आ रहे हैं, दैट इज नॉट द पॉइंट. पॉइंट ये है कि जो ये गैप है ऑलमोस्ट 15 से लेकर 20 मार्क्स का जो गैप है, या मोर देन 20 मार्क्स का जो गैप है, सो how I approached, right, or how someone should approach to fill this gap, ठीक है? what is the vacuum? तो you have to see कि आप कितने मार्क्स में लैग कर रहे हैं, ठीक है, for both GS1 and for GS2 as well, ठीक है? For those who get stuck in means, there will be videos further regarding this. This is a prelims focused video, right?
Secondly, if you fail in GS, one, how do you analyze it? Marks obtained in last years and the vacuum which you need to fill. I already cleared this point. Then, are you doing any silly mistakes? देखो, silly mistakes बहुत तरीके की होती हैं. One which you do during the preparation and one which you do while solving the paper. And ऐसा नहीं है कि आप हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि आप पेपर सॉल्व करते हुए तो कर रहे हो बट प्रिपरेशन के दौरान नहीं कर रहे हो, या प्रिपरेशन के दौरान वो मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो, ठीक है, कर रहे हो बट सॉल्विंग द पेपर नो. दोनों ही हम दोनों ही स्टेप्स पे बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करते हैं. तो पहले मैं सॉल्विंग पेपर लेना चाहूंगी बिकॉज इसमें कम है कंपैरेटिवली बताने के लिए दैट आप क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं वाइल सॉल्विंग द पेपर, राइट. पहली सिली मिस्टेक्स तो हम ये बेसिक मिस्टेक करते हैं दैट यू डोंट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, राइट. यू नीड टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, राइट. क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, वेदर इट्स करेक्ट, वेदर इट्स नॉट करेक्ट, व्हाट आर द स्टेटमेंट्स व्हिच इज गिवन, राइट. आर यू सॉल्विंग द पेपर, राइट, बाय एलिमिनेशन मेथड, because it is very important that you solve the paper with the elimination method. Are you reading the options carefully? So बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है. मैं पहले बहुत सारी मिस्टेक्स करती थी, क्वेश्चंस को पढ़ने से रिलेटेड हो, स्टेटमेंट्स को पढ़ने रिलेटेड हो, ठीक है. या फिर कई बार ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि वी नो द क्वेश्चन एंड इट्स वेरी इजी बट उस वक्त वो क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है. या फिर यू टेंड टू गेट लिटिल कंफ्यूज एंड आप इजी क्वेश्चंस को गलत कर जाते हो, राइट. तो ये एक बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है, कि इजी क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है बिकॉज these are those questions जो सब सही करके आएंगे. Moderate or difficult questions, you can afford little bit to get them wrong or to have less accuracy. But if you आप ज्यादा easy questions को wrong करेंगे, then this is the truth, this is a hard truth that you are out of the game there and there, right. So this is like you have to see कि easy questions वहाँ पे कौन से हैं. Especially in CSAT, the whole battle is to chalk down the easy questions because आपको वहाँ पे कट ऑफ नहीं क्लियर करना. You just have to score 66 marks out of 200, ठीक है. थर्ड चीज वहाँ पे जो एग्जाम में होती है, राइट, कि हो सकता है आपके पास बहुत नॉलेज हो, राइट, बट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट बैटल ग्राउंड, राइट. एप्लीकेशन आप क्या वो अप्लाई कर पा रहे हैं क्या या नहीं कर पा रहे. एंड ऑब्वियसली एवरीवन नोज कि ये कोई एक दिन का गेम नहीं है. एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज जो भी हम 1-2 महीने पहले स्टार्ट करते हैं आफ्टर गिविंग मॉक्स एंड बाय स्टडिंग, और उस चीज के बारे में हमने उससे क्या सीखा उसका एनालिसिस करके, ठीक है. So yes, how you apply that knowledge in those 2 hours, ठीक है. How you calm yourself, ठीक है. कितने स्पेशली आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने कर रहे हैं, ठीक है. अगर आप 70-75 कर रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट है टू गेट थ्रू द कट ऑफ, राइट. सो योर मिनिमम अभी डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एटलीस्ट इट शुड बी मिनिमम 85 और इट कैन रीच टू 92 और 90, ठीक है. I did 88 question this time, right. और दूसरा ये कि आप फर्स्ट गो में कर रहे हैं या 2 गो में कर रहे हैं, आपके लिए क्या सूट करता है. कई लोग इसको 2 गो में करते हैं, राइट. आई डू इन 1 गो, ठीक है, बिकॉज आई डोंट गेट टाइम टू रीड द पेपर अगेन, ठीक है. और यस, कौन से आपको बस इजी क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है, माइंड दिस फैक्ट, राइट. और ड्यूरिंग प्रिपरेशन तो आई कैन जस्ट गो ऑन, ठीक है. बहुत सारी silly mistakes because I did a lot of silly mistakes during my preparation. तो पहली चीज मैं ये बोलूंगी, limit your resources and this is a very basic thing, ठीक है. सबको पता है कि आपको अपने resources को बहुत ही लिमिट करना है, ठीक है. एक सर्टेन वही आपकी एनसीईआरटीज और आपकी बेसिक बुक्स, if you are new, you must be fond of various books, collecting them, reading them, और उससे कुछ नहीं होने वाला है. 2 किताब पढ़ो, ढंग से पढ़ो, नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवाइज करो, 5-10 बार रिवाइज करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, सोते सोते रिवाइज करो, कुछ भी करो, बट लिमिट योर रिसोर्सेज, राइट. सेकेंड पोर्शन इज दैट मेक नोट्स, राइट. मैंने एंटायरली अपनी चीजों के नोट्स नहीं बनाए थे, दैट्स वेयर आई फील, ठीक है. और अगर जितने भी नोट्स बनाए थे आई वॉज नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज देम प्रॉपरली, ठीक है. इस पे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है. जैसे कि मैं A4 साइज शीट्स पे नोट्स बनाती थी तो मैं उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाती थी प्रॉपरली. सो नाउ आई मेक नोट्स सम लाइक ऑन A4 साइज शीट्स. जो स्टैटिक पोर्शन है आई मेक ऑन
in notebooks. ठीक है. Also आप जरूरी नहीं है कि हर एक चीज जो भी पढ़ रहे हो सबके नोट्स बनाओ. ठीक है. 100% द सिलेबस इज सो वास्ट. आप हर एक चीज जो पढ़ रहे हो उसके नोट्स नहीं बना सकते. बट येस, यू मस्ट नो दैट कौन से सब्जेक्ट्स के किस तरीके से नोट्स आपको बनाने चाहिए. राइट. इफ यू वांट a separate video on this, you can just comment and we can make like a 5 to 6 minutes video on this. Right. After that, revision. ठीक है. सब लोग बोलते हैं रिविजन और सबको पता है कि रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. और बट आई थिंक यू नो दैट कि रिविजन करना है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिविजन कैसे करना है. ठीक है. यस, ये आई थिंक ये भी सबको पता है कि देयर इज अ साइंटिफिक proven thing कि whatever you read today that you should revise it within 24 hours. ठीक है. इफ नॉट पॉसिबल, ठीक है, बहुत ज्यादा हर बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम उसको 24 आवर्स में रिवाइज करें. राइट. इफ नॉट पॉसिबल देन यू शुड रिवाइज इट राइट विद इन 2 days. आफ्टर दैट यू शुड रिवाइज इट आफ्टर 7 days. देन आपकी जो थर्ड रिविजन होगी दैट शुड बी आफ्टर 14 days. राइट. एंड द फोर्थ रिविजन शुड बी आफ्टर 1 month. ठीक है. तो इस तरीके से आपके 4 रिविजन हो जाते हैं. ठीक है. फिर आप ऑब्वियसली आप बाद में उसको एज सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट रिवाइज करोगे. सो इससे क्या होता है ना, द थिंग्स जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में इट जस्ट फिट्स इन एंड इट्स वेरी आपको साथ के साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करनी है. ठीक है. तो मैं क्या करती हूँ, लाइक बिफोर प्रीलिम्स, आपका हमारा जब प्रीलिम्स आता है तो उसके 2 से 3 months पहले what I do is I self-record my audio on my mobile phone and then मैं जब भी इधर उधर I do task तो उनको मैं सुनती हूँ या सोते हुए सुनती हूँ, so that कहीं ना कहीं कुछ facts मेरे, because while we listen it's been easy to remember rather than we read and write. Right. दूसरा आप ये कर सकते हैं like brainstorming thing when you sleep. Right. आप कोई रिकॉर्डिंग नहीं सुन रहे हैं, आप सिर्फ आज के दिन क्या क्या पढ़ा, यू जस्ट हैव टू री-रिवाइज इट इन योर माइंड. इफ यू आर एबल टू रिकलेक्ट इट लाइक फॉर 30-40% देन यू गुड टू गो. ठीक है. जो 50-60% है आप उसको अगले दिन देखें कि यार ये वाला चीज मुझे याद नहीं आया या ये वाला फैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा. तो ये कुछ टिप्स हैं कि आपको रिविजन कैसे करनी है. राइट. और मैंने ढंग से रिविजन न करने के कारण यू टेंड टू फॉरगेट थिंग्स. आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको लगता है ये है या ये है. तो स्टैटिक पोर्शन तो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए, नॉट द मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन. स्टैटिक पोर्शन तो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि दिस इज द आंसर. राइट. जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल Harappa civilization if we take, right, in Harappa civilization we know that कि tiger was not. ठीक है. tiger was not but not लाइन वॉज नॉट नॉन. राइट. जबकि वैदिक सिविलाइजेशन में इसका उल्टा होता है कि लाइन वॉज नॉन टू पीपल बट टाइगर वॉज नॉट नॉन टू पीपल. ठीक है. अब एग्जाम में जाके इतना टाइम भी नहीं होता और आपको कोई चांस नहीं है कंफ्यूजन का. यू मस्ट नो दिस. इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए. उसको चाहे कितनी बार रिवाइज करो कि अगर ये एग्जाम में आता है देन आप बहुत इजीली उसको यू आर एबल टू रिकलेक्ट इट. ठीक है. सो yes, these were certain tips. So limit your resources, make notes, do proper revision. Fourth part मैं पे ये बोलना चाहूंगी कि complete your syllabus. ठीक है. complete your syllabus because हमारे क्या होना comfort zones होते हैं, हमारे basic comfort zones होते हैं. हम उस comfort zone से बाहर नहीं निकलना पसंद करते हैं. Right. Like my comfort zone was my comfort zone was various subjects like polity. ठीक है. my comfort zone was polity. ठीक है. मैं क्या कर रही हूँ, पॉलिटी कर रही हूँ. ठीक है. बारी बारी में पॉलिटी कर रही हूँ, मैं मॉडर्न हिस्ट्री कर रही हूँ, मैं इकोनॉमिक्स कर रही हूँ. राइट. मैं इकोलॉजी कर रही हूँ. बट मेरे जो कंफर्ट जोन की सब्जेक्ट नहीं है. ठीक है. right now I cannot say they are not because for certain topics I have fallen in love with them. Geography, then medieval history, then it's ancient history, after that science and technology. ठीक है. international relations. तो ये मेरे को थोड़े से technical subjects जो थे like geography and science and technology I was not much comfortable earlier, but over the time
क्या होता है ना कि अगर आप सपोज आपके पास कम टाइम है, ठीक है, तो you cannot leave the subject, you can leave the topics, various topics in the subjects, ठीक है, जैसे geography है, right? If you don't have time, maybe 2 महीने बाद prelims है, आपको backup करना है, you have to do the certain topics, right? Like Indian climate, okay, oceans के बारे में, ठीक है, climatology, right? Soils, after that agricultural resources, the portions, राइट, अगर जैसे मिनरल हिस्ट्री है तो हमको पता है कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो मे बी यू कैन स्किप इट एज एन फॉर प्रीलिम्स, ठीक है, तो you don't have to go as per your comfort zone, complete your syllabus, clear your concepts. When I say clear your concepts, that is like very important because conceptual questions आते हैं like ecology, especially of polity and economics, बहुत conceptual questions आते हैं. There's so many videos out there on YouTube, and we are also bringing up various conceptual videos for the various subjects, ठीक है. For UPSC, I personally believe that कोचिंग शायद एक बार नेसेसरी नहीं है, राइट, right, maybe I can say that coaching is not necessary, I can definitely say this thing, but mentorship and guidance is really really important. जो बहुत ज्यादा important है कि आप कोई गाइड कर रहा है, आप उनकी मिस्टेक से सीख रहे हैं, या फिर जो ये इस प्रिपरेशन को कर चुके हैं आप उनके बारे में है, यू नो, पढ़ रहे हैं. दैट इज वाई वी वॉच टॉपर्स वीडियोस कि उन्होंने क्या क्या किया, सो दैट दे आर देयर एंड वी आर स्टिल हियर, ठीक है. सो यस, तो दीज वर द सर्टेन थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड. सेकंड इज यूपीएससी सिविल सर्विसेज सिलेबस. सो जब वी वर मेकिंग दिस स्लाइड्स तो मेरे माइंड में एक ये चीज आई दैट इट्स द सिलेबस इज लाइक इन अरेंज मैरिज वेयर यू हैव सीन द पर्सन, राइट, but not understand the person. Because ठीक है, आप जब I'm not saying कि ऐसा होता ही होता है, but जो हम I can say the first hour में आप सिर्फ you don't understand the person, right? तो same is with the syllabus. I know, I assure 100% of the people do read it, but how many of we understand it? That's the crux. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स. यहाँ पर आपको कोई स्टोरी नहीं पूछने वाला है, ठीक है, कौन सा राजा कौन से वक्त था, किसने किसको मार के, यू नो, दे हैव रीच्ड द थ्रोन, हाउ मेनी बैटल्स, what were the battles, what year those battles fought. No, they're only focusing on the culture aspect. They're only focusing on the culture aspect, the art forms, the literature. See, for example, if I take Gupta period, ठीक है, तो मुझे नहीं पढ़ना कि यार क्या क्या था, बस मुझे इतना पता होना चाहिए कि जो मेन जो आपका एरा है उसके अंदर व्हाट वर द आर्किटेक्चर. सो टेम्पल आर्किटेक्चर वर एट हाइट्स, ठीक है, द्रविड स्ट्रक्चर, ठीक है, नॉर्थ में क्या था, साउथ में क्या था, लिटरेरी वर्क्स क्या थे, कौन कौन उस वक्त यू नो बड़े बड़े दिग्गज थे लाइक कालिदास जी, and everyone, right, on the social life, on the economic life. Also, then we have to compare it with the previous paper so that we get a better understanding of this, right? So this is we इसको हम further videos में बहुत ही detail में लेने वाले हैं about the main syllabus, right? So yes, that's it for this video. I don't want this video to get it long. I hope you enjoyed it. I hope you have learned out of this. You have learned something out of this, and if you like this video, please show some love, show some support. Do like, subscribe and share and comment. We are open for all the positive critiques, right? So thank you so much. Thank you for your patience listening. Jai Hind.